आज मैं आपको जो है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं उनके विषय में बताऊंगा। द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आर नंबर 1 में आता है मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग is to maintain systematic accounting records of financial transactions and events. It means that the accounting records should be maintained following the accounting principles and concept. In other words, the function of bookkeeping is the primary functions of accounting. It is so because reliable financial statements can be drawn. Bookkeeping is proper. The process of bookkeeping involves recording financial transactions and events in the books of accounts and classifying the recorded transactions. The transactions having been classified, trial balance can be drawn to prepare financial statement, income statement and position statement. सेकेंड वन में आता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स द फाइनेंशियल अकाउंट prepared at the end of accounting period. It includes income statement, profit and loss account or statement of profit and loss account in the case of companies, and position statement of balance sheet. It is an important function of accounting because the financial statement show the financial performance, profit and earn on loss incurred during the accounting year, and the financial position balance sheet as at the end of accounting year. Both the statement are important for all the users because users make decision on the basis of these statement. तीसरा आता है मीटिंग लीगल requirement. Accounting records are accepted as evidence by the court of law if they are maintained systematically following the accounting principle and concept. Besides the laws such as the Companies Act, Income Tax Act, वेट एक्ट, जबकि अब वेट एक्ट हट करके जीएसटी हो गया है, रिक्वायर सबमिशंस ऑफ रिक्वायरमेंट और रिटर्न in the form of period as is prescribed in the law. The returns can be prepared if the accounting records are maintained systematically and timely. Besides, the returns so submitted may have to be provided correct before the authorized a systemic accounting record maintained following the accounting principle and concept in the accepted by the authorized to the correct. Thus it is the function of accounting to meet the legal requirement. चौथा आता है इसमें communicating the financial data. It is yet another functions of accounting to communicating the financial data to the user, which may be internal user or external user such as a management, bank, employees, government, authorized etc. चौथा फिफ्थ आता है इसमें असिस्टेंट्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर्स इंफॉर्मेशंस बियॉन्ड द इंफॉर्मेशन conveyed by the financial data. Accounting records should be maintained in such a manner that the information should by the management is available, which is turn help in decision making. For example, financial assessments do not show since when the amount is due from debtors. It is the functions of the accounting to make such information available to the management. Similarly, accounting record should be maintained in such a manner that the assets owned are know it will assets the management is protecting the assets as and also exercising control.
अब फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में मैंने आपको बता तो दिया कि मेंटेन सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या आता है। हम इसमें अपनी किताबों को रखते हैं। अब मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ कि अपनी किताबों को इसमें जो है हम लिखते हैं। किताबों को जब लिखते हैं तो सारे रिकॉर्ड उसके अंदर रखे जाते हैं, किस किस कौन कौन सी चीज़ें हमने, जो सेल से रिलेटेड होगी, परचेज से रिलेटेड होगी, एक्सपेंसेस सारे खर्चे होंगे, वो सारा हम एक बुक कीपिंग के अंदर मतलब मेंटेन करते हैं। जब हम उस रिकॉर्डों को, जो भी हमारे पास रिकॉर्ड होते हैं, जब हम एक बुक कीपिंग के अंदर उसको मेंटेन कर लेते हैं, देन वी गो टू द फॉर क्लासीफाइड। हम उसे क्लासीफाइड करते हैं। क्लासीफाइड के लिए हमें एक ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है कि दोनों तरह डेबिट और क्रेडिट साइड को कंपेयर करना। जो एंट्रीज हमने डेबिट में करी है, जो एंट्रीज हमने क्रेडिट में करी है, उन दोनों को कंपेयर को ट्रायल बैलेंस कहते हैं। कंपेयर जब हमारा ठीक हो जाता है तो फिर उसको ड्रॉ करते हैं हम एक प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस से एक प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं और उस स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस से ही हम इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट बनाते हैं, ताकि हम ये देख सकें कि हमारी पोजीशन इस समय कितनी है और क्या है। दूसरा हमने जो बताया था आपको, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम बुक कीपिंग कर लेते हैं, ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीन फाइनेंशियल अकाउंट्स को प्रिपेयर को तैयार करते हैं। जब हम फाइनेंशियल प्रिपेयर तैयार करते हैं तो उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं, बैलेंस शीट हम उसके अंदर बनाते हैं, कितना हमने प्रॉफिट किया है, कितना हमने मतलब लॉस हुआ है, कितना गेन हुआ है, कितना नहीं हुआ है। इन सारी चीज़ों को हम उस एक इनकम के अंदर और बैलेंस शीट के अंदर हम इसको तैयार करते हैं, ताकि हम अपने यूज़र को ये सब चीज़ें बता सकें कि एक साल के अंदर में जो उन्होंने अपने बिजनेस को चलाया था, उस बिजनेस में उनको कितना गेन हुआ है, कितना नहीं हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना नहीं हुआ है। सब सारी चीज़ें हम उसमें बताए थे। तीसरा आता है हमारा मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, यानी कुछ हमें लीगली तौर से भी काम करने पड़ते हैं। सपोज करो कि इनकम टैक्स के अंदर हमें टैक्स रिलेटेड चीज़ों को जमा करना पड़ता है। दूसरा जो है हमें जीएसटी, जो पहले वैट था अब वो जीएसटी में कन्वर्ट हो गया। जितना भी हम मटेरियल ख़रीदते हैं, जितना भी हम ट्रेडिंग करते हैं, उन सब के बिहाफ में हमको ये सब करना पड़ता है कि क्या हमने जो जीएसटी के अगेंस्ट में जो ख़रीदा है उस पर टैक्स कितना बना है, वो टैक्स हमें गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता है। उस लीगली तौरों को भी हमें उस रिक्वायरमेंट उसको उस लीगल को भी हमें रखना पड़ता है। उसके अलावा तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो भी हम रिकॉर्ड रखते हैं, उन सब रिकॉर्डों को हमारे को लीगल रिकॉर्डों को भी संभाल के रखना पड़ता है। अब लीगल रिकॉर्ड में हम जीएसटी के बारे में मैंने आपको बताया, इनकम टैक्स में जो हम टैक्स बनता है उसको पे करते हैं। चौथा होता है हमारा कम्युनिकेटिंग इन द फाइनेंशियल डेटा। हमें अपने जो जिस तरीके से हम तैयार करते हैं उस डेटे को हमें जो है अपने सच यूज़र को भी बताना होता है, और हमें हम उसको बताना पड़ता है हमारे को कि किस किस तरीके से हम डाटा को तैयार किया है। वो डेटा फिर हम उसको दे देते हैं, वो डेटा से अपने को मतलब अपना काम करते हैं, और उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही यूज़ में वो काम आता है। ठीक है। चौथा होता है, पांचवा लग हमारा है वो असिस्टेंट ऑफ मैनेजमेंट। अब हमें क्या है कि इसमें हमें ये सारी चीज़ों को सिमलाइज कर लेते हैं, उसको फंक्शन को हम देख लेते हैं कि किस किस तरीके से हमने काम किया है, किस किस तरीके से हमने चीज़ों को डेटा को रखा है, किन किन अकाउंट को रखा है, कैसे कैसे हमने सारी चीज़ों को रखा है अपने पास, क्या डेटर्स हैं, क्या क्रेडिटर हैं, क्या हमारे पास बैलेंस शीट में क्या पोजीशन आई है, क्या नहीं आई है, क्या हमारी प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहे हैं। इस तरीके से सारे ही डेटे को हम जो है एक तरीके से असिस्टेंट टू मैनेजमेंट के नाम से उसको कहते हैं, ताकि हम अपने सारे रिकॉर्डों को सही तरीके से रख सकें और देख सकें कि हमने क्या और क्या किया। ये सारा जब हम एक बिज़नेस करते हैं तो हम इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बुक कीपिंग करना पड़ता है, फिर उसके बाद हमारे को सब उसको क्लासीफाई करना पड़ता है, फिर हमें उन सब चीज़ों जो लीगल तौर से जो हमारे काम होते हैं उनको हमें देखना पड़ता है, फिर उसके अलावा जो हम कम्युनिकेटिंग करते हैं, फाइनेंशियल डाटा जो हमारे पास होता है उसको हमें देखना पड़ता है कि डाटा किस तरीके से कैसे यूजर से काम आएगा। और लास्ट में जो मैं आपको बता ही रहा था कि असिस्टेंट ऑफ टू मैनेजमेंट,
कि किस तरीके से हमें मैनेज करना पड़ता है, किस तरीके से फाइनेंस डाटा को रखते हैं, किस तरीके से हमें उन सब चीज़ों को एक जगह रखना पड़ता है। तो ये आज मैंने आपको जो बताया वो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग है। ये आपको फ्यूचर में जब कभी आप बुक राइटिंग करेंगे या किसी कंपनी में जॉब करेंगे, किसी कंपनी में काम करेंगे या चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह वगैरह के लिए आप जब तैयारी करेंगे तो भी आपको इस चीज़ के लिए बहुत ज्ञानवर्धक होगी। अगर आप इसे ढंग से पढ़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे तो आपको ये सब समझ में आएगा। और धीरे धीरे करके मैं अभी तो चैप्टर 1 पे ही हूँ, फिर सेकंड चैप्टर भी मैं आपको बताऊँगा। तो आप इसे पढ़ें और अच्छे से सीखें, अच्छे से चीज़ों को करें। और कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे जो मेरा एक नंबर है उसमें आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें, पढ़ाई पर ध्यान दें और भविष्य अपना उज्जवल व अच्छा बनाएं। मैं आपके भविष्य उज्जवल अच्छे भविष्य की कामना भी करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद।